Okay. Hello everyone. So welcome back to my channel Anis Search Technology. In this lecture we are going to discuss the Java programming language, and in the Java programming language series we have covered basic programming, if else, then after that we have covered the logical operators with the if. We have also seen the functionalities of the switch case, and after that we have started the looping. In the looping, I think this is the third lecture of the looping, and it's my personal suggestion to all of you, if you have any problem from the previous lecture, so a complete entire playlist of all the lectures specified is uploaded, so you can watch and cover from there. Okay, fine. So in this lecture, basically we are going to discuss in this session digit extraction with the while loop. You will not believe, it's a very important topic in the Java, digit extraction. Basically, for table generation, for series generation, okay, we don't prefer the while loop. Okay, it doesn't mean कि हम सीरीज और टेबल जनरेशन वाइल से कर नहीं सकते हैं. We can do, but we don't prefer the while loop for the table generation and series generation. For table generation and for series generation, we basically prefer for loop. Okay, that we will discuss in the next couple of days. अभी हमने इसको डिस्कस नहीं करा. तो ऐसा नहीं है कि सीरीज जनरेशन और टेबल जनरेशन वाइल से हो नहीं सकती, बट उसके लिए फॉर लूप ज्यादा बेटर रहता है. ओके, जो हम आपको बताएंगे. बट डिजिट एक्सट्रैक्शन हम लोग जनरली वाइल लूप से ही करते हैं, क्योंकि डिजिट एक्सट्रैक्शन वाइल लूप से ज्यादा बेटर है. तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डिजिट्स. ओके, नाउ just for a second please, I want to clear one thing very important. Suppose we have a number stored in variable. Okay, suppose int n is equal to 1 2 3 4 5. This number is unit 10, 100, 1000, 10,000, 12,345. Okay, and suppose I want to perform some task on this number. Please understand, first of all you have to understand what topic I am going to discuss. I want to add all the digits. हमें इन सारी digits को add करना है, but it's a combined number. 12,345, it's a combined number, it's a tightly joined number, और हमें इन सारी डिजिट का सम करना है. तो इसके लिए ये सारी डिजिट एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए. एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अलग अलग, मतलब 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, 4 अलग, 5 अलग. तो ये सारी डिजिट को जो हम अलग अलग करते हैं, इसको कहा जाता है एक्सट्रैक्शन. जब तक ये सारी डिजिट सेपरेट नहीं होंगी तब तक हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते. होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन. हाउ वी विल डू, वी विल सी in the few minutes, but first of all we have to understand what we are going to do. Clear? Are you getting my point? Do you understand the scenario? Please reply. Please reply. Okay, very good. Yes, sir. The students are replying very good. Now, one more thing I want to discuss. You can keep on asking the questions
during the session. I will really appreciate that if you have any query. So maybe you heard about that. Palindrome number, Armstrong number, automorphic number, duck number. Okay, and 1 minute, I just want to clear this drawing. Okay, don't worry. अभी हम एक ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं टॉपिक के लिए. डक नंबर एंड ऑटोमॉर्फिक नंबर. ओके, एंड नियॉन नंबर, एंड स्पेशल नंबर. इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं ये क्या हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. इस तरह के जितने भी नंबर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, नंबर बेस्ड प्रोग्राम, जैसे पैलिंड्रोम नंबर वो होते हैं जिनको हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें और राइट हैंड साइड से देखें वो एक जैसे लगे. ओके, इसको बोलते हैं हम लोग पैलिंड्रोम नंबर. हमें सपोज चेक करना है कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं. इस तरह की जितनी भी चेकिंग्स होती हैं उसके लिए हमको डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती हैं. वही आज हम सीखने जा रहे हैं. डोंट वरी अबाउट दीज नंबर्स, वी विल डिस्कस. हम इन सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इन सारे नंबर को चेक करने के लिए? वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द डिजिट. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें यह सीखना है कि हाउ द डिजिट्स आर एक्सट्रैक्टेड. डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट होती है. अगर हमने ये प्रोसीजर अंडरस्टैंड कर लिया तो हम ये सारे नंबर कर लेंगे. ठीक है, मैं अभी जल्दी जल्दी एक शॉर्ट वे में आपको बता दूं. ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है? 153. ये सब बाद में अभी डिटेल में आएगा. आर्मस्ट्रांग नंबर होता है 153. हर एक डिजिट के क्यूब का सम ओरिजिनल नंबर के बराबर होना चाहिए. और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, मतलब क्यूब ऑफ एवरी डिजिट शुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर. तो इन सारी डिजिट के क्यूब का जब हम सम करेंगे यू विल अगेन गेट 153. इसके लिए भी what is the prerequisite? You must know that how to extract the digits. Okay, understand? इसी तरह से डक नंबर क्या होता है? एक ऐसे नंबर को हम लोग डक कहते हैं जिसमें कहीं पर भी पूरे नंबर में एक जीरो आ रहा हो. अगर एक सिंगल जीरो आ रहा है या एक से ज्यादा जीरोज आ रहे हैं तो उसको डक नंबर कहते हैं. मतलब कोई डिजिट जीरो होनी चाहिए. एक से ज्यादा हो जाए दैट्स वेरी गुड, लेकिन एटलीस्ट एक होनी चाहिए. तो ये दोनों आपके डक नंबर है, डीएन. और अगर हम इसकी बात करें, सो दिस इज नॉट अ डक नंबर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी जीरो. नो. ओके, यू डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल डिस्कस. हम यहां बता रहे हैं कि इन सबको चेक करने के लिए यू मस्ट नो अबाउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डिजिट. तो इन सब के लिए जो हमारा ओरिजिन है वो है डिजिट एक्सट्रैक्शन. तो वी हैव टू फुली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. ओके, नो प्रॉब्लम. अगर आपकी मैथ 5% भी अच्छी है तो आप इस टॉपिक को बहुत जल्दी समझ लेंगे. तो हम इमीडिएटली वी आर स्विचिंग फ्रॉम द थियोरेटिकल रीजन टू प्रैक्टिकल रीजन. ओके, नो प्रॉब्लम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल I just want to start my BlueJ. Okay, this is my BlueJ. Okay, from the very basic I am moving and I am just taking a fresh class extraction demo. ये continuously 2-3 lectures चलेगा. Extraction demo. इस टॉपिक को समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग, one point I want to write. For understanding the digit extraction. Okay, you only have a little idea
about while loop and 2 lectures already uploaded related to while loop. ओके हमको आइडिया है while loop का, हम लोग भी हैव डन ऑलरेडी 2 लेक्चर्स ऑन द while loop, तो हम इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं. ओके so I just want to delete all this. First of all, I just want to frame a question. So my question is, write a program to input a number of multiple digits and calculate the sum of all the digits. Very important, very important topic. Write a program to input a number of the multiple digits and calculate the sum of all the digits. For example, suppose n num is equal to 1, 2 and 4. This is a number. I've taken a very random number for example. Okay, 124. So what we have to do, 1 plus 2 plus 4 is equal to 7. मतलब इन सारी डिजिट को अलग करना, एक्सट्रैक्ट करना और उनका सम करना. ठीक है, नंबर कुछ भी हो सकता है. It's not a fixed number. It's just an example. Suppose num is equal to 3, 4, 4, 5, 6, 5, 1. Okay. Now what we have to do, 3 plus 4 plus 4 plus 5 plus 1. How much? 8, 9, 10, 11, 12, 12 or 5? Correct. Correct, Madhav. Very good. Hope you all understand about the question. Hope you all understand about the question. Can you please confirm? Can you please confirm? Your reply is very important for me. Okay, very good, very good. The students are replying. So you understand the question. Now I'm going to start the implementation part. Class extraction demo. This is my name of the class. Public static void main string args. Yes, of course, we have to take the input. Then scanner ob, scanner class object, and system.in. Understand? Now for a scanner, we have to import a very important package. Okay, relax. It's not a very tough topic. Num. Okay, and this is the variable. Suppose आपको ये नहीं मालूम है कि हमें कौन कौन से वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप एक वेरिएबल ले लीजिए, जैसे जैसे आप वेरिएबल यूज करते जाएंगे, यू हैव टू डिफाइन. First of all, we have to take an input from the user, enter number, because without input we cannot do anything. Input is a very essential part. Done. Input part is done. Matlab means this much portion we have covered. Write a program to input a number. Now, अब हमारी लॉजिक है, इतना तो सब कर लेते हैं. While num is greater than 0, जब तक num हमारा 0 से बड़ा है, तब तक हमें एक्सट्रैक्शन करना है. P is equal to num modulus 10. Please don't worry about that. And one variable I have defined P, and one more variable I have to take sum, because we have to calculate the sum of all digits. Sum is equal to sum plus P, and num is equal to num divided by 10. Understand? Please don't worry. Just system.out.print sum of all digits
plus sum. Multiple time I will do the dry run. Proper आपकी, just 1 second please. Let me compile. There is no error. Now first of all I want to run this program, then I will do the dry run, ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्वेश्चन करके आ रहा है. Just 1 second please. Extraction demo. Okay. Now I have to supply or give one number. So just I've given 1, 2, 4, 3, 5. Can you please tell how much sum of this number? 15. Clear? Just understand the input output. Don't worry about the program, I will explain. 1 second please. 10. 1 minute please. Simple digit extraction. 19. मतलब कितनी भी डिजिट हम दे दें, it's a generalized program. It will calculate the sum. It will calculate the sum. ये इसलिए एरर दे रहा है, उसका रीजन ये है कि हमने नंबर उतना ज्यादा दे दिया जो इंटीजर की कैपेसिटी के बियॉन्ड है. इंटीजर की कैपेसिटी के बियॉन्ड है. अगर हम लॉन्ग डेटा टाइप यूज कर लें तो ये बड़ा नंबर भी हैंडल कर लेगा. वो पार्ट हम लोगों को मालूम है, डेटा टाइप हम लोग देख चुके हैं. तो हम थोड़ा सा इंटीजर की रेंज में नंबर देते हैं. नो प्रॉब्लम. अंडरस्टैंड? ओके. नाउ अब ये प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है वो हमें समझना है. हमेशा एक बात याद रखिए कि डिजिट एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग मॉड्यूलस और डिवाइड का यूज करते हैं. 1 minute. For digit extraction, we use two operator slash and modulus. इन दोनों के अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. ये दोनों हमको सपोर्ट करते हैं डिजिट एक्सट्रैक्शन में. कैसे हम देखने जा रहे हैं. Just for a second please. Now full concentrate on the dry run please. Full concentrate. पूरा ध्यान आपको देना है ड्राई रन पे प्लीज. ओके. तो जस्ट फॉर अ ड्राई रन पर्पस आई हैव टेकन अ नंबर 124 फॉर अ ड्राई रन पर्पस. कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, हमने ले लिया. P and sum, two additional variables are there and initially they are empty. अभी इनको हमने यूज में नहीं लिया, जस्ट डिफाइन. क्लियर? एज वी नो दैट, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है, लूप, पूरा लूप वाइल का इस कंडीशन पर डिपेंडेंट है. जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली दिस लूप विल बी टर्मिनेटेड और ब्रेक. ओके, ऑलराइट, ये हम जानते हैं. तो num is 124. क्या num greater than 0 है? num is 124. It is very much greater than 0. Clear? My condition is true. अब हम लूप के अंदर आएंगे. My first step is that num modulus 10. मतलब num को 10 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर है वो p में लाओ. तो करके देखते हैं 124 को 10 से. ये पहला प्रोग्राम है, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा हर चीज, कोई जल्दी नहीं है हमें. 10 1 जा 10, 24, 10 2 जा 20, and how much remainder we will get? 4. अंडरस्टैंड? तो P में रिमाइंडर आएगा, दैट इज 4. तो P में 4 आ गया. इसका मतलब है कि लास्ट से हमने एक डिजिट एक्सट्रैक्ट कर ली, मतलब निकाल ली. 4 आ गया. अब सेकेंड स्टेप है सम इज इक्वल टू सम प्लस p.
तो 0 प्लस 4 सम इज 0, तो 0 प्लस 4 इज 4। अब ये ऑलरेडी डिजिट हम ऐड कर चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे नंबर में से ये डिजिट परमानेंटली रिमूव हो जाए, हट जाए। तो उसके लिए हम थर्ड स्टेप लिखा है हमने, नम इज इक्वल टू नम बाई 10, यानी नम को 10 से डिवाइड करो और जो कोशेंट है वो नम में लाओ। तो व्हाट इज अ कोशेंट? 12, क्योंकि स्लैश ऑपरेटर गिव द कोशेंट, तो अब नम हमारा हो जाएगा 1 2, that is 12. Now I'm just taking a small break and please I'm asking, ये स्टेप सबकी समझ में आया कि नहीं आया? एक बार हम मॉडुलस यूज कर रहे हैं रिमाइंडर के लिए, एक बार हम स्लैश यूज कर रहे हैं क्वोशिएंट के लिए। मॉडुलस प्रोवाइड द रिमाइंडर एंड द स्लैश प्रोवाइड द क्वोशिएंट। डू यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? अभी हम आगे जाएंगे। Okay, few students are saying that it is clear, but I am waiting the response for every student. Please. अब हम वापस ऊपर गए अगेन देखने के लिए हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो राइट नाउ नम इज 12। क्या 12 ग्रेटर देन 0 है? यस, इट इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन इज अगेन ट्रू। अब हम इस स्टेप पे आए, नम इज इक्वल नम मॉडुलस 10। अब नम हमारा 12 है, तो 12 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, व्हाट रिमाइंडर आई विल गेट इन द पी? लेट मी चेक। सब कुछ आपके सामने हो रहा है। 10 से डिवाइड कर रहे हैं और इंटीजर डिवीजन है, फ्लोट डिवीजन नहीं होगा। ओके, तो P में क्या आएगा? मॉडुलस, एंड द मॉडुलस प्रोवाइड द रिमाइंडर दैट इज 2। तो P में आएगा 2, तो ये 4 ओवरराइट हो जाएगा और 2 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट सम इज इक्वल टू सम प्लस P। सम इज इक्वल टू सम प्लस P, तो सम में पहले से 4 है, तो 4 प्लस P यानी 4 प्लस 2 6। ओके, अब ये 2 हमें अपने नंबर से हटाना है। वी हैव टू रिमूव परमानेंटली, क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो दोबारा फिर ये इंक्लूड हो जाएगा। तो उसके लिए ये स्टेप है, नम इज इक्वल टू नम बाई 10। नम को 10 से डिवाइड करो और जो कोशेंट है वो नम में लाओ। कैन यू प्लीज कंफर्म कि इतना समझ में आया? माही क्या हुआ? क्यों, क्या कर रही है? Just 1 second, please understand. I get back to you. Okay, so do you understand? Just 1 minute, please. Now, after that, I will again come back to the condition. While loop में जितने भी statements होते हैं, सब execute होने के बाद वापस हम condition पे जरूर आते हैं. This is the point to be noted. This point to be noted that after completing all the steps, we must have to come back to the condition. क्योंकि बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कंडीशन का फॉल्स होना. नम, व्हाट इज नम? राइट नाउ नम इज 1. क्या 1 ग्रेटर देन 0 है? यस, 1 इज आल्सो ग्रेटर देन 0. कंडीशन इज स्टिल ट्रू, तो दिस इज आल्सो ट्रू. अब 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, देन व्हाट विल हैपन? ये थोड़ा समझना है. 1 को, बिकॉज नम इज 1, तो 1 को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा? अब यहां पर आपकी मैथमेटिकल टेस्टिंग है. 1 को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा? हम पॉइंट में जा नहीं सकते क्योंकि एवरीथिंग आई हैव टेकन इंटीजर. तो 10 zeros are 0 एंड रिमाइंडर विल बिकम 1. इस तरह से डिवाइड होगा. 90% स्टूडेंट गेट्स फेल इन दिस स्टेप. नम को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो अब P में क्या आएगा? P में आएगा रिमाइंडर, and remainder is 1, so that 1 will be stored in P. Everything is in front of you, my dear student. Sum is equal to sum plus P. So sum is 6, 6 plus 1. Sum is 6, 6 plus 1.
7. Correct? Now num is equal to num slash 10. Slash means quotient. So how much quotient is there? 0. That 0 will be stored in num. Now num will become 0. Now again I am coming back to the condition. क्या num greater than 0 है? Now num is 0 and that is not greater than 0. So my condition is false in this step. Num का 0 होने का मतलब है, num 0 means all the digit has been extracted out. सारी digit extract हो चुकी हैं. Now num is 0 and 0 is not greater than 0. Condition is false. So loop will break and I will come to this step. Now how much sum? Sum is 7. You can see this is sum and sum is 7. This 7 will be printed over here. Okay. Now I want to run this program on this input. Sum is calculating the sum. Someone is asking what is the use of sum. The sum is taking the sum of all the digit. In सारी digit का sum यानी 1 plus 2 plus 4 इन सारी digit का sum ही तो sum variable में आ रहा है. तो sum is taking the sum of all the digit. Now I want to execute this program. Just 1 second please. Just 1 second please. I have given the number 124. हम इनको हटाना नहीं चाह रहे ताकि आप इसी ड्राई रन के कंप्लायंस में अपने आंसर को चेक करें. तो 124 पे हमने ड्राई रन किया था. 124 I have given and the sum is 7. Now you can compare it. Now you can compare it. Clear? A complete diagrammatic representation of this program in front of you. Are you all with me? क्या समझ में आया ये आपके? Please respond. I have already told you कि your response is very necessary for me. उसी के बेस पर हम आगे चलते हैं. Aninder Pratap Singh, can you please reply? Raghav Rai, can you please reply? Raghav Rai, can you please reply? Shlok Agarwal? Yes, sir. Can you please reply? Yes, it is clear. Clear. Raghav? Raghav? Okay. Don't worry. Don't worry. We have to take the specialization on this concept. We have to take a complete specialization on this topic. 1 minute. You don't worry. मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा. जब तक मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी समझ में आया, तब तक हम इसे समझाते रहते हैं. Just 1 second, please. Just give me 1 second. I want to clear all this drawing. I just want to close this output window. Now, अब आप मेरे साथ साथ थोड़ा हेल्प करेंगे मेरी. I have taken another number 149. Okay, हम इसका ड्राई रन करने जा रहे हैं. इसके लिए हमने लिया P and sum. Okay, the point to be noted. मैं आपको समझाता हूं. एक पॉइंट, theoretical point, very important. ठीक है. Any number, any digit number, कोई भी डिजिट का नंबर हो, like n is equal to 1 2 3 4 5 6. जब भी कितने भी बड़ा नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं, if you are
dividing by 10, then in modulus, in remainder, you will always get the last digit. रिमाइंडर में सॉरी लास्ट डिजिट, जितना भी बड़ा नंबर हो अगर आप उसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर में हमेशा आपको लास्ट डिजिट मिलेगी. आप करके देख लेना पेपर पे. अगर आप मॉडुलस यूज करते हैं, इफ यू यूज मॉडुलस ऑपरेटर, ओके, अगर आप इफ यू आर यूजिंग स्लैश ऑपरेटर, तो लास्ट डिजिट को छोड़कर जितने भी नंबर आपके बचते हैं, इफ यू आर यूजिंग द स्लैश ऑपरेटर, तो लास्ट डिजिट को छोड़कर जितने भी नंबर बचते हैं वो आपको मिलेंगे एज ए क्वोशंट. मतलब अगर आप स्लैश यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5, और अगर आप मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं तो आपको मिलेगा आंसर में 6. इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को जरूर टेस्ट कीजिएगा अपनी कॉपी पे लिखकर. ओके, ये आपका एक टास्क है. ओके, हम वापस से इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, ड्राई रन कर रहे हैं, सॉरी. जस्ट 1 मिनट. हाउ मच टाइम आई हैव, लेट मी चेक. वी हैव द 1 मिनट एक्चुअली. ठीक है, तो हमें रिकनेक्ट होना होगा एक बार. तो आर वी रेडी फॉर द रिकनेक्शन? नॉट आई विल टेक नॉट वेरी मच टाइम, बिकॉज काफी टाइम बाद मैं क्लास ले रहा हूं, तो थोड़ा सा क्लास थोड़ी सी लेंथी हो रही, ज्यादा नहीं. तो जस्ट प्लीज रिकनेक्ट योरसेल्फ. Okay, so once again, I'm doing the dry run of the same question. Just 1 second, please. Okay, so this time I'm taking some new number. 149. Okay. Now, first of all, I have to check the condition. Is num greater than 0? Now all have to reply because this is a second dry run. इसमें आपको रिप्लाई भी करना है थोड़ा थोड़ा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है. आई एम विथ यू ऑल. यस सर, नम इज ग्रेटर देन 0. अब हम इस स्टेप पे आएंगे, नम मॉडुलस 10, यानी अगर हम नम को 10 से डिवाइड करेंगे तो पी में क्या आएगा. जैसा अभी हमने कंडीशन सेट करी कि पी में 100% 9 आएगा, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होके आती है. इस चीज को हम दिखा भी सकते हैं एक बार और. चलो हम एक बार और दिखा देते हैं इस चीज को. 149, क्योंकि दिस इज आवर फर्स्ट ड्राई रन. 149 को हमने 10 से डिवाइड करा. थोड़ा जल्दी करते हैं. 10 1 द 10 and 49, 10 4 the 40, and the remainder will become 9. और P में क्या आएगा? 9, जो कि हमने पहले से ले लिया. ओके, अब सम हमारा कितना है? 0. तो वी हैव टू टेक वन मोर वेरिएबल, सम इज इक्वल टू 0. किसी ने पूछा था व्हाट इज द पर्पस ऑफ सम, तो सम इज टेकिंग द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स. तो सम इज 0, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस P, मतलब सम 0 है तो 0 प्लस 9. हमने फर्स्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करी और उसका सम 9 कर लिया. अब ये डिजिट हट जानी चाहिए, तो नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10. यहां पर हम स्लैश ऑपरेटर यूज कर रहे हैं. स्लैश का मतलब होता है क्वोशंट, तो माय क्वोशंट इज 14. सो नाउ नंबर विल बिकम 14. क्लियर? मैंने बोला अगर हम स्लैश यूज करते हैं तो लास्ट डिजिट छोड़कर जो कुछ बचता है वो रिमेनिंग हमारा पार्ट नम में आएगा. Again, I am taking the condition, testing the condition. 14 is greater than 0 because num is 14. Second round में तो num is greater than 0. 14 is greater than 0. Reply. Num is 14. 14 is greater than 0. Yes. Yes, sir. अब 14 को 10 से डिवाइड करेंगे देन क्या होगा? अगर हम 14 को 10 से डिवाइड करेंगे सर, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एंड रूल 4 आएगा. करके देख लेते हैं. हाँ, लेट मी चेक. बिल्कुल हम चाहते हैं ये चीजें आपके माइंड में एडजस्ट हो जाएं. यस सर, 4 is coming. So this 4 will be stored in P that already I have taken.
Sum is equal to sum plus p. 9 plus 4. 9 plus 4, 13. Understand? Understand? अब num is equal to num by 10. ये जो स्टेप है वो नंबर को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है. तो अब num को 10 से डिवाइड करेंगे तो quotient is 1. Now num will become 1. Understand? Again I am testing the condition. 1 क्या 0 से ग्रेटर है? Yes. 1 is greater than 0. और जब भी सिंगल डिजिट को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में वही सिंगल डिजिट बचती है. करके देख लेते हैं. 10 zeros are 0 and remainder 1. क्लियर? तो P में क्या आएगा? P will get 0 और 1. 0 और 1. सर मॉडुलस यूज कर रहे हैं तो रिमाइंडर ही आएगा. दैट इज 1. सम इज इक्वल टू सम प्लस पी. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा. सम इज इक्वल टू सम प्लस पी मतलब सम जो प्रीवियस है उसमें पी ऐड हो जाए. तो प्रीवियस सम कितना है? 13. तो 13 में जब पी ऐड होगा तो यू विल गेट हाउ मच? 14. करेक्ट माधव. अब num is equal to num by 10. अब num कितना हो जाएगा? Do you have any idea how much num? Zero. Slash क्या देता है? Quotient. 0 is greater than 0. Again we have to check the condition. No sir. 0 is greater than 0. No sir. 0 is greater than 0. No sir. कंडीशन इज फॉल्स. अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप ब्रेक होगा. लूप ब्रेक होने का मतलब है कि इन ब्रेसेस से हम बाहर आएंगे एंड बाहर आई विल गेट अ स्टेटमेंट सम ऑफ ऑल डिजिट्स सम. व्हाट इज माय सम? वेयर इज माय सम? 14. कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? Very good response. Very good response. Very good response. Okay. As you know that, 1 minute. 1 minute, please. As you know that, slash provides the quotient. And the modulus provides the remainder. Clear? And both are mathematical operator, math operator. ये दोनों हमारे mathematical operator हैं. There are 5 math operator. कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, कॉमा, स्लैश, कॉमा, मॉडुलस. ओके, डन. दीज आर द 5 ऑपरेटर्स. इन 5 में से हमने 2 का यूज किया. Clear to all of you? Okay. Now I just want to clear this drawing and I want to ask a question. अब देखते हैं कि कौन उसका रिप्लाई जल्दी देता है. और इसी प्रोग्राम में हमें चेंजेस करना है. Write a program to input a number of the multiple digit and calculate the product of all the digit. What do you mean by product? Multiply is equal to 4 to the 8, 8 1 the 8. Clear? And here ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लो. प्रोडक्ट
product. And what we will get? 4 4. ठीक है, आराम से बताइए, ठीक है, कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा. ठीक है, Sir, 240. 16 into 5 into 3, 240. Clear? Clear, sir. Thank you, Arnav. Okay, good. तो अब क्या क्या करेंगे? What changes are required? क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं? सबसे पहले आराम से देखो इसमें क्या चेंजेस रिक्वायर्ड. वेरी गुड, वेरी गुड. अगर हम यहां पर प्लस की जगह पर अगर हम मल्टीप्लाई यूज करें, Multiply. है ना, और यहां पर हम लिख दें प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स, और सम को चाहे तो हम सम ही रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल से तो कोई मतलब नहीं. जस्ट 1 मिनट, कंपाइल. बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से. हमने प्लस की जगह पर एस्ट्रिक कर दिया क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए था. बहुत ध्यान से प्लीज, फुल कंसंट्रेशन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जस्ट 1 मिनट, आई एम जस्ट क्लोजिंग एंड रनिंग. और अब बताओ कि अगर हमने नंबर दिया 1 2 3 4, आंसर क्या आएगा? 24. आंसर क्या आएगा? आई वॉन्ट क्विक रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन के आंसर क्या आएगा? 24. 24. माधव, और भी लोगों को आंसर करना है. माधव, तुम्हारा आंसर मैंने सुन लिया, 24. और भी लोग? 0. ओके, और भी लोग? 0 आएगा सर. Okay, Raghav is saying 24, Arnav is saying 24. Okay, anyone else? Sir, 0. Okay, someone is saying 0. Someone is saying 0. Okay, तो 24 आंसर आना चाहिए, बट आंसर आएगा 0. Why? आंसर 0 आ गया? We have to do initialize sum is equal to 1. Yes. आपने सुना है मैथ में एक चीज थी, हमने भी अपने स्कूल में सुना था, बहुत पहले की बात है, कि जब भी हम कितने भी बड़े नंबर को, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 0 ही मिलता है. ऐसा होता है ना? ऐसा ही हो रहा है यहां. द सेम थिंग इज डूइंग ओवर हियर. किधर, कहां? तुमने सम को 0 ले रखा है और तुम सम में ही मल्टीप्लाई कर रहे हो सारी चीजों को, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल गेट 0. इनफैक्ट योर मार्क्स विल बी 0. योर मार्क्स विल ऑल्सो विल गेट 0. अब सुनो, सम के केस में तो ये ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन द केस ऑफ समेशन, इन द केस ऑफ एडिशन, बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट you have to do 0 to 1. क्लियर? 0 to 1. जब भी आपको प्रोडक्ट करना होगा तो जिस वेरिएबल में आप स्टोर कर रहे हैं उसको 0 नहीं लेना है, उसको 1 लेना है. डू यू अंडरस्टैंड? मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे आपको समझाया है. अब कौनो दिक्कत नहीं, अब आप इसको धीरे से रन करा लो, बहुत धीरे से रन करा. पीछे रन हो रहा है. 1 2 3 5 5 3 the 15 to the 30 into 130. No problem, sir. No problem. No problem. Understand to everyone? Understand to everyone? Understand to everyone? Can you please reply? Any doubt? Any doubt, please tell me. Any doubt? Okay. Any doubt, please tell me.
बस छोटा सा चेंज है, a minor change is there. Sir, can you please give me the tip how to improve this digit extraction? How to improve digit extraction? Tip, I will tell. Do the dry run multiple times with different number. I want to share you one thing. I have a very huge experience. So मैं जो बातें आपको बताऊंगा वो बहुत ही refined बातें होंगी. Huge experience. Okay. So how to do the dry run? Take number. These are the number जिन पे आपको dry run करना है. First number, इस पे आप dry run करेंगे. Second number, इस पे करेंगे. थर्ड नंबर इस पे करेंगे. फोर्थ नंबर सिंगल डिजिट पे भी करेंगे. 5 नंबर इस पे करेंगे. इन 5 पे आप ड्राई रन कर लीजिए. दिस इज माई श्योरिटी, यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. और ड्राई रन ऐसे नहीं करना है कि सामने नंबर रखा, सारी डिजिट एक्सट्रैक्ट करके ऐड कर दी. नहीं, ड्राई रन आपको कैसे करना है मैंने बताया था आपको अभी. नंबर के साथ साथ सबसे पहले ड्राई रन इज एन आर्ट, इज अ प्रोसीजर जो कि बीएससी एमएससी लेवल तक होता है. ड्राई रन प्रोसीजर कैसे करेंगे? अगर आपको ड्राई रन का प्रोसीजर आ गया तो क्लास 12 तक आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. डोंट वरी, मैं बताता हूं ड्राई रन का प्रोसीजर क्या है. बिकॉज दिस इज आई क्लोजिंग द सेशन. बस ड्राई रन प्रोसीजर समझ लीजिए. जस्ट आई वांट टू क्लियर ऑल दिस ड्राइंग. ड्राई रन प्रोसीजर में सबसे पहले you have to write down all the given variables. Write down all the given variables. Nobody will explain you about the dry run procedure. और अगर कुछ इनिशियल वैल्यू आपने सेट करी तो वो भी लिख लीजिए. अब नम में आपने एक नंबर एज्यूम करना है क्योंकि यूजर आप ही बन जाएंगे उस टाइम और आप ही एक नंबर देंगे. अपने आप को यूजर मान लीजिए. अब यहां चेक करो कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. कंडीशन इज ट्रू. अब अंदर आइए. p इज इक्वल टू नम मॉडुलस 10. नम इज 14426. 10 से डिवाइड करेंगे p में क्या आएगा? 6. अब जल्दी कर रहे हैं. सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई p. तो 1 into 6 हाउ मच? 6. दिस इज कॉल्ड ड्राई रन. नम इज इक्वल टू नम बाई 10. नम विल बिकम 42. 42 इज ग्रेटर देन 0. यस यस. यहां आइए, यहां अपने आप को टेस्ट कीजिए. 42 is greater than 0. Yes. 42 modulus 10. You will get 2. Sum is equal to sum multiply p. 6 2s are how much? 12. Num is equal to num by 10. Num will become 4. 4 is greater than 0. 4 को 10 से डिवाइड करेंगे, सिंगल डिजिट 10 से डिवाइड होगी, रिमाइंडर में सिंगल डिजिट आएगी. Sum is equal to sum multiply 4. 12 on the 12, 48. हाँ, num is equal to num by 10. अब 4 को डिवाइड करेंगे, you will get 0. 0 is greater than 0. कंडीशन फॉल्स. कंडीशन फॉल्स. कंडीशन फॉल्स. बाहर आ जाइए. सम हाउ मच? सम 48. 48. अब जावा कहता है, जावा मुझसे बहुत सी बातें कहता है और वो मैं अपने स्टूडेंट को बताता रहता हूं. तो जावा कहता है अकॉर्डिंग टू द जावा रिकमेंडेशन, मीनिंगफुल वेरिएबल शुड बी देयर. मीनिंगफुल वेरिएबल शुड बी देयर. तो मीनिंगफुल का मतलब हम यहां सम तो कर नहीं रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं. तो इसको आप पीआरडी कर लीजिए या प्रोडक्ट पूरा कर लीजिए. यही प्रोडक्ट आपको यहां पर भी करना. PRODUCT प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और यहां पर भी प्रोडक्ट. अब ये बिल्कुल आपका प्रोग्राम नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से परफेक्ट हो गया. एग्जामिनर देख के पूरे नंबर दे देगा यार, नो प्रॉब्लम.
और हर प्रोग्राम तुम्हारे सामने आउटपुट दे रहा है. आई एम मेकिंग द प्रोग्राम इन फ्रंट ऑफ यू. हाउ मच नंबर I've taken? 426. And you can see the product is coming 48. Thanks to all of you. Should I say thanks to all of you? And I am just closing the session. Hope you understand. Can you please reply? Can you please reply? Yes, sir. Okay. Sir, what is the homework? होमवर्क के लिए आपको एक शीट दे रखी है, बट मैं यहां पर भी होमवर्क लिख देता हूं. अ शीट इज सर्कुलेटेड विथ यू ऑल, बट टाइम है तो हम यहां पर, ठीक है, मैंने ऐसी क्लास ले ली कि जो कि 2-3 प्रीवियस क्लासेस को कवर कर रही है. होमवर्क. ओके. जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं वो मेरा लॉस नहीं कर रहे हैं, वो अपना लॉस कर रहे हैं. They are doing this, sir. Paper is very tough. No problem, no problem. पेपर मैं सॉल्व करूंगा. पेपर मैं सॉल्व करूंगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1. Write a program to input a number and print the product. इसको रिपीट कर लीजिएगा. Of all digits. First question. Second question. And print the sum of all the even digits. That's my second question. सिर्फ आप उतना करिए जितना मैं कह रहा हूं, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए. I will take care about your programming. Write a program to input a number and print the sum of all the odd digits. Should I give the example? For example, num is equal to 1, 2, 3, 4. तो इसमें इवन डिजिट कौन कौन सी हैं? 2 + 4 is equal to 6 आना. 6 आना है. Num is equal to 1, 2, 3, 4. This is 1, 2, 3, 4 means 1234. Odd digit कौन कौन सी है? 1 + 3 is equal to how much? 4. और यहां तो आपको मालूम ही है, क्लियर? अब आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और दिए दे रहे हैं, वरना मैं तो नहीं दे रहा था. एंड write a program to input a number and count how many digits are there. This is awarded question. बहुत कम लोग कर पाते हैं इसको. पहले लेक्चर में बहुत कम लोग कर पाते हैं. सपोज ये नंबर है, तो how many digits are there? 1, 2, 3, 4. 4 digit are there. Okay. For example, अगर नंबर है ये, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स आर देयर. ठीक है. 4. इन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन नेक्स्ट कमिंग सीरीज पे होगा, जो कि मेरी आने वाली है. अंडरस्टैंड? तो अब इन क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे? ठीक है, सोचना है आपको. थिंक अबाउट इट. मैं इन सारे क्वेश्चन को कॉपी करके आपको व्हाट्सएप पे भी भेज रहा हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. Apart from my student, those persons are watching my videos, kindly subscribe my channel so you will be stay connected. Okay, so I'm just closing my session. Hope you don't have any problem right now. Yes, one is odd. One is odd. One is odd. ठीक है. Any problem, sir? Can I close? Thanks, Madhav. Mother saying happy Guru Purnima.
Thanks, Madhav. Thanks to all of you. My students are very cooperative and intelligent. ठीक है. I am just closing this session. Thanks to all of you.